Hello everyone, welcome to YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about class 11's first chapter of chemistry known as basic concepts of chemistry. Here we have to study about all the basics concepts of chemistry, including its beginning of the chemistry, where it came from, what is the definition of chemistry, and what are the parts of chemistry, what we have to study in chemistry. All the basic concepts are the first chapter of chemistry. We have to study about all the basic of chemistry here. So let's begin. Guys, don't skip it because it is very important to further study of chemistry. Let's begin. First, it was only the universe. First, it was the only the universe when the with some of the scientists divided universe into two parts. First one is matter and the other one is energy. We study about energy in the physics very well, so we will not discussing here energy. We will only discuss here matter, because chemistry is a branch of science where we study about matter. Chemistry is a branch of science where we study about matter. This is the basic question anybody can ask. What is chemistry? So chemistry is the branch of science where we study about matter. Okay, then further, matter is divided into two parts. Matter is divided into two parts. Which are they? First one is physical classification and second one is chemical classification. What is physical classification and chemical classification? When we classify the matters according to their physical behavior, they are known as physical classification, and when we discuss about chemical classification, they are known as, when we classify matters as chemical compositions and their chemical qualities, they are known as chemical classification. Further, when we talk about physical classification, they are divided into three parts. First one is solid, second liquid, third one is gas. We have studied about the physical classification of matter in class 9th very thoroughly, because this is the first chapter of class 9th. Here we only discuss about this and brush up our knowledge, and after that we will further discuss the chemical classification of chemistry. So let's begin with solids. What are solids? Matters that have fixed volume and fixed shape and size are known as solids. For example, this board is a solid. The intermolecular space of solids is very less. They have the molecules very nearer in its, and the rigidity of solids is very tough. They are highly toughable. Okay, then let's go to the liquids. What are liquids? All the substances or matters which have fixed volume but no fixed shape and size, they are called liquids. For example, water, oil. These are some examples of liquids. And when we come to gas, these types of physical classification or matter, physically classified matter, gas, these types are don't have any shape, any size or fixed volume. This is the property of gas, that they don't have any fixed shape, size or volume. They can be highly compressible. The large amount of gas can be compressed highly and carried away in a small size of container. For example, we carry liquid petroleum gas
LPG to cook food in our homes. Another example is of gas is carbon dioxide. Let's come to the chemical classification. Chemical substances or matters are chemically classified into two parts. First one is pure substance and second one is mixture. When in nature we found substances purely with no impurities, they are called pure substances. When we find the matters with impurities or other matters are involved in it, it is known as mixture. The mixture is of two types. First one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. When we talk about homogeneous mixture, they are unanimous, means the mixture one is purely dissolved in another one, means when two or more substances are mixed to make a homogeneous mixture, the first one is dissolved wholly in the second one. We will discuss it about in class 12. In next year when we study about class 12, we will discuss it about further. Here you have to only know the definition. Second one is heterogeneous mixture. What is heterogeneous mixture? When two or more substances are mixed to form an ununiform mixture, it is known as heterogeneous mixture. Okay, now let's come to the pure substances. What is pure substance? We have learned that what pure substance is a type of matter or substance which has no impurities or zero impurities. Further, the pure substances are divided into two parts. First one is elements and second one is components. Compounds. First one is element and other one is compounds. Compounds are further divided into two parts. First one is organic compounds. What are organic compounds? What are organic compounds? Organic compounds are the compounds which have carbon in making the compound, which have carbon atom in making the compound. For example, methane, alkanes and alcohols are the some examples of organic compound. The second part or another part of compound is inorganic compounds. What are inorganic compounds? All the compounds which don't have any carbon atom in making the compound, it is known as inorganic compound. Simple. Example, salt, water, acids are some examples of inorganic compounds. Now when we come to elements, elements are further divided into three parts. What are they? They are metals, non-metals and metalloids. What are metals? All the matters or elements which have light, which are compatible to electricity and they have the property of malleability are called metals. For example, zinc, iron, silver and aluminium are some examples of metals. What are non-metals? Just opposite of metals are called non-metals. They don't have any type of light. They don't have the property of malleability and they don't have the compatibility to the electricity. What are metalloids? Metalloids are the between layer of metals and non-metals. They have both features like
metals and non-metals, they have both the features. For example, metalloids are germanium, boron, silicon are some examples of metalloids. This is the first lecture about the basic concepts of chemistry, class 11th. Hope you have enjoyed the video. Let's we continue it in English because our students are from both UP board English medium and Hindi medium, also CBSE board English medium and Hindi medium, and all the boards in all over India which possess the NCERT. So let's begin it in Hindi. आज हम रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो हमारे केमिस्ट्री पार्ट 1 की बुक है आपकी क्लास 11th के लिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणाएं। इसमें हम रसायन विज्ञान से संबंधित सभी अवधारणाओं की शुरुआत से जो चली आ रही हैं और अभी जो चल रही है लेटेस्ट में, सारे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे अगले चैप्टर्स में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स था। ब्रह्मांड को साइंटिस्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला आपका द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में, इसलिए हम यहाँ ऊर्जा की बात नहीं करते हैं। हम बात करेंगे द्रव्य यानी मैटर की। ठीक है, द्रव्य आपको 2 पार्ट्स में 2 तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। पहला तरीका है भौतिक वर्गीकरण का और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण का। सर यहाँ पर वर्गीकरण होगा, समीकरण कैसे लिखा गया है? यहाँ पर वर्गीकरण होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्गीकरण होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण जी यहां पर होगा रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन की, फिर हम बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण की। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब पदार्थ को उसके भौतिक या द्रव्य या पदार्थ एक ही बात होती है, जब द्रव्य को उसके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं या बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसे हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। भौतिक वर्गीकरण 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। इसे आपने क्लास 9th में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। यहाँ हम सिर्फ इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह सभी पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाते हैं जिनकी आकृति, आकार व आयतन निश्चित होता है। एग्जाम्पल के लिए यह जो जिस बोर्ड पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, यह भी आपका एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद आता है द्रव पदार्थ यानी लिक्विड। वह सभी पदार्थ द्रव पदार्थ कहलाते हैं जिनका आकृति और आकार तो अनिश्चित होता है, परंतु उनका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में वो भरे जाएंगे उसी का आयतन ग्रहण कर लेंगे। जैसे आपका पानी हो गया और आपका तेल हो गया। पानी को अगर बोतल में डालिए तो वो बोतल का आकार, गिलास में डालिए गिलास का आकार, बड़े बर्तन में डालिए तो उस बड़े बर्तन का आकार, बाल्टी में डालिए बाल्टी का आकार, टंकी में डालिए टंकी का आकार। तो इसीलिए हमने कहा कि इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति व आकार निश्चित नहीं होता है। आइए उसके बाद देखते हैं अगला जो है वो भौतिक वर्गीकरण में तीसरा प्रकार जो है वो है गैस का। गैस वह सभी द्रव्य गैस पदार्थ कहलाते हैं जिनका न तो आकृति निश्चित होती है, न आकार, न आयतन। इन्हें दबाने का गुण होता है। इन पर बहुत ज्यादा दबाव डालकर इन्हें छोटे से छोटे चीजों में भरकर दूर से दूर ले जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा गैस की छोटे से छोटे आकार के बर्तनों में भरी जा सकती है। उदाहरण के लिए हम अपने घरों में जो गैस प्रयुक्त करते हैं खाना बनाने के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, वह हाईली कंप्रेस्ड होती है, बहुत ही ज्यादा उसे कंप्रेस करके उस छोटे से डिब्बे में भरा जाता है। इसी तरह से CNG जो आजकल लोग गाड़ियों में यूज कर रहे हैं वो भी गैस का एक उदाहरण है। आइए अब हम देखते हैं क्या रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रासायनिक वर्गीकरण, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाए उसे हम रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह हम आसानी से और सरल भाषा में, दोनों भाषाओं में हमारा हर जो वीडियो होगा, चाहे जिस क्लास के जिस सब्जेक्ट का भी हो,
जो आपका दोनों लैंग्वेजेस में होना चाहिए, वो दोनों लैंग्वेजेस में हम उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, इससे आपको भी मजा आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा आपको समझाकर। इसके लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब आशा है आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा है आपका मिश्रण यानी मिक्सचर। पहले हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से जब प्रकृति में कोई द्रव्य आपका कई पदार्थों के साथ मिलकर हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से, या मिलाकर बनाया जाता है तो कई पदार्थों को या कई द्रव्यों को, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो है आपका दो टाइप्स का होता है, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी सम अंग वाले, इसके नाम से ही अर्थ है समांगी, सम अंग वाले, मतलब कि जब यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो वो एक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, पता नहीं चलता कि कौन किसमें घुल गया है, एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका चीनी और पानी का जो घोल होता है उसमें पानी में चीनी पता नहीं चलती है, शरबत जो बनाते हैं आप, इसके बारे में हम मिश्रण क्या होता है इसके बारे में हमारे पास एक पूरा चैप्टर है क्लास 12th में। आप हमारे वीडियो सेक्शन में क्लास 12th पे जाकर वहां से पूरा इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां आपको उसकी जरूरत भी पड़ेगी। आप वीडियो सेक्शन में क्लास 12th हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12th में और पूरा इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, असमांगी मिश्रण क्या होता है। असमांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ इस प्रकार से मिलाए जाएं कि उनका जो मिश्रण है वो समांग ना हो, मतलब हम इस पार से उस पार देख नहीं सके, हमें पता चले कि हाँ दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलाए गए हैं। इसमें कई प्रकार के लेयर फॉर्म हो जाती हैं, लेयर बन जाती है, जैसे कि हम चीनी जैसे कि हमने अभी यहाँ समांगी मिश्रण की बात की थी तो वहां चीनी और पानी मिलाया था, यहाँ हम मिट्टी मिला दें पानी के साथ या रेत मिला दे पानी के साथ तो घुलेगी तो है नहीं, उसमें तैरती रहेगी, बाद में नीचे जाकर तलीन पर हट जाएगी। पानी का एक लेयर ऊपर, पानी का एक लेयर ऊपर बन जाएगा, नीचे मिट्टी की लेयर अलग बन जाएगी। अगर हम पानी और तेल भी मिला दें तो पानी नीचे तैरता रहेगा और तेल उसके ऊपर तैरता रहेगा, आप जब चाहे तो अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उन्हें असमांगी मिश्रण कहा जाता है। दोस्तों आइए, आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ जो प्योरली शुद्ध होता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार के यौगिक, किसी भी प्रकार का कोई और तत्व नहीं, कोई इंप्योरिटी नहीं मिली होती है, हम उसमें नहीं मिला पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, पहला तत्व दूसरा यौगिक। दोनों ही शुद्ध होते हैं, तत्व भी और यौगिक भी। तो अब हम पहले यौगिक की बात कर लेते हैं, फिर तत्व की बात करेंगे। तो यौगिक क्या होता है दोस्तों, जब कोई शुद्ध पदार्थ क्रिया करके एक दूसरे शुद्ध पदार्थ से क्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करता है, जिसे हम बाद में आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं, उसे यौगिक कहा जाता है। दोस्तों कुछ आसानी से अलग हो जाते हैं और कुछ आसानी से अलग नहीं भी होते हैं, उन्हें यौगिक कहा जाता है। जब एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अलग स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं रह सकता है, दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिकों को भी दो प्रकारों में बांटा गया है। यौगिक के दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है आपका कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। तो अगर हम कार्बनिक यौगिक की बात करें तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ऐसे सभी यौगिक जिनमें यौगिक का निर्माण करने के लिए कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है, मीन्स कार्बन एटम इज कंपल्सरी। कार्बनिक यौगिक में कार्बन एटम जो होता है वह आवश्यक होता है, इसीलिए इसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप मीथेन ले सकते हैं, एल्केन ले सकते हैं, और सभी एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल जो बनाई जाती है, शराब के जो प्रकार होते हैं, उन सभी में कार्बन का जो एटम है वो उपस्थित रहता है लगभग। इसके बाद जब हम बात करें अकार्बनिक रसायन की, इनऑर्गेनिक इंग्लिश में इसे कहते हैं, इंग्लिश सेक्शन में हमने इसे अच्छे से डिस्कस भी किया था। अकार्बनिक रसायन क्या होता है, वह सभी अकार्बनिक कंपाउंड या अकार्बनिक रसायन भी इसे कहते हैं। अकार्बनिक कंपाउंड क्या होता है, वह सभी यौगिक
जिसको बनाने के लिए कार्बन परमाणु की आवश्यकता नहीं होती है। बिना कार्बन परमाणु के ही वह यौगिक फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। उसे हम अकार्बनिक रसायन या अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे अकार्बनिक यहाँ यौगिक होना चाहिए। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए कंटेंट समझोड़ कर ले आते हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस समय थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए, क्योंकि अभी हम नए नए हैं और हमारे इसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। तो इसे इग्नोर करिएगा दोस्तों, लिखने में उसे हो जाता है, मगर हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सरलता और अच्छी तरीके से एकदम आसान भाषा में आपको समझाएं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। अब हम बात कर रहे हैं अगर अकार्बनिक यौगिक की, तो जिसमें कार्बन की आवश्यकता नहीं पड़ती है यौगिक बनाने में, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो नमक, पानी और सभी प्रकार के जो अम्ल हैं, ये आपके अकार्बनिक रसायन के उदाहरण है। इसके बाद हम बात करें तत्व की, तो वह सभी तत्व हैं जिनमें अघात वर्धनीयता का मतलब पीटने पर वो फैलते जाएंगे, उनको खींचते चले जाएंगे, उनकी लंबाई बढ़ती चले जाएगी। जैसे लोहे का तार खींचा, लोहे का तार, उसका तांबे का तार आपने सुना होगा, सोने का तार सुना होगा, चांदी का तार सुना होगा, और ये पीटते रहने पर टूटते नहीं है, फैलते चले जाते हैं, तानने पर तनते चले जाते हैं। वो गुण जिसमें पाया जाता है। और जो चमकदार होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व की श्रेणी में रखते हैं। और तत्व आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है धातु यानी मेटल्स। वह सभी जो गुण मैंने आपको बताया वह धातुओं में उपस्थित होते हैं। उनमें आघात वर्धनीयता भी पाई जाती है, उनमें चमक भी होती है, और वो खींचने पर लंबे होते चले जाते हैं, और विद्युत के सुचालक भी होते हैं। इसलिए इन्हें, उन सभी को धातु कहते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है और जो चमकदार होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु के एग्जाम्पल क्या है? जिंक, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, सोना, ये सभी क्या है? धातु के उदाहरण है कुछ। इसके बाद हम बात करें अधातु की। अधातु क्या होता है? धातु का जो अपोजिट हो वह अधातु है। ना तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ना इनमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है। कभी कभी इन पर एक ही हथौड़ा मारो तो ये टूट भी जाते हैं। और अधातुओं में और क्या पाया जाता है? इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, इनमें चमक भी नहीं पाई जाती है। तो ये सब धातु का उल्टा अधातु में होता है। अधातु के उदाहरण है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि अधातु के उदाहरण है। अब हम बात करें उपधातु की। उपधातु को हम मेटलॉइड्स भी अंग्रेजी में कहते हैं। उपधातु का मतलब होता है वह तत्व जिनमें कुछ गुण धातुओं के और कुछ गुण अधातुओं के पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं दोस्तों। उपधातु क्या है? उदाहरण जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन आदि अधातु या उपधातु के उदाहरण हैं। उपधातु के उदाहरण है दोस्तों। ये रहा आज का हमारा वीडियो। आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। जल्दी ही हम अपना सेकंड लेक्चर लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। हमारे वीडियोस को वॉच करिए। हमारे चैनल को अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे कंटेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाइए। इसीलिए